Kindly turn your Bibles with me to the book of 2 Timothy chapter 3 and verse 1. कृपया करके आप अपनी बाइबल में मेरे साथ में निकालिए दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 और वचन 1। But mark this, there will be terrible times in the last days. पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। I will read it again. मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। But mark this, there will be terrible times in the last days. पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। By the grace of God, we have been speaking about the signs of the last days. परमेश्वर के अनुग्रह से हम अंतिम दिनों के चिन्ह के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। No wonder we are all traversing towards the last days of this world. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम सब लोग इस संसार के अंतिम दिनों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। We have to understand that the days that God has given this world is not unending. हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो संसार जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये कभी खत्म होने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। There is a time set for this world where the days of this world will come to an end. इस संसार के लिए एक समय निश्चित किया गया है जहां पर इस संसार के जो दिन हैं वो तो खत्म हो जाएंगे। In the end of the days, people who have not accepted Jesus Christ, people who live in sin will be ending in the judgment of God. और अंतिम दिनों में जिन लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया और जो पाप में जी रहे हैं उन पर परमेश्वर का न्याय आएगा। But we, the children of God, who have been saved by the atoning blood of Jesus Christ, we have an eternal hope that we will live with Jesus forever in heaven. लेकिन हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और हमारे पास में ये आशा है कि हम अपना अनंत काल स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में बिताएंगे। हमारे पास ये आशा है। And Jesus is going to come back again to take us to be with him forever. और यीशु मसीह वापस आएंगे कि वो हमें अपने साथ लेकर जाए और हम प्रभु यीशु के साथ में हमेशा हमेशा रहे। When the world is not aware of the ending of days, by the abundant grace of God, God has revealed to us signs that will go ahead of the coming of the Lord Jesus Christ or in the end of days. जबकि संसार पर परमेश्वर का अनुग्रह बना है और संसार उसे नहीं पहचान रहा है, तो परमेश्वर अंतिम दिनों में ऐसे कुछ चिन्ह दिखाएंगे और ये चिन्ह तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले होने वाले चिन्ह हैं। By the grace of God, in the past 6 sermons, I have exposed to you 6 different signs that will precede the last days. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पिछले 6 संदेशों में हमने देखा कि अंतिम दिनों के पहले कौन से चिन्ह होने वाले हैं। The first sign was the sign of the nation of Israel. सबसे पहला जो चिन्ह है ये तो इस्राएल देश का चिन्ह है। The Lord had prophesied that Israel will be established again as a nation after it was scattered for many years throughout the world. परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल देश इस पूरे संसार में कई शतकों तक बिखरा हुआ रहने के बाद वापस एक देश के रूप में आ जाएगा। The second sign we dealt with was the signs that God will display in nature. दूसरा चिन्ह जो हमने देखा वो तो परमेश्वर प्रकृति में चिन्ह दिखाएंगे। There we saw how you will see signs in the forms of earthquake, famine, pestilence and so on. और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे भूकंप, मरी और इसके द्वारा कैसे प्रकृति में चिन्ह दिखाई दिए हैं। The third sign we went through was the signs that will occur in world politics. और तीसरा चिन्ह हमने देखा कि संसार की राजनीति में कैसे कैसे चिन्ह दिखेंगे। The Lord had already foretold how the governments of the nations, how the empires will rise and fall before the end days. परमेश्वर ने पहले से ये बता दिया है कि अंतिम दिनों के पहले कैसे संसार के जो राज्य हैं, देश है वो उठेंगे और गिर जाएंगे। The fourth sign we dealt with was the degradation of society, foretelling the end of days. फिर अगला चिन्ह हमने देखा कि समाज का जो स्तर है कैसे घटते जाएगा, ये तो अंतिम दिनों के बारे में हमें बताएगा। The sign number 5 that we dealt with was how the whole world, according to God's prophecy, will find a rapid increase in knowledge. और फिर 5वां चिन्ह हमने देखा कि पूरा संसार कैसे ज्ञान में बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। The last sign that we did in our last sermon was
how before the last days or during the last days there will be a tremendous apostasy, the falling away from the faith that will occur throughout the world. और पिछली बार जो हमने छठा चिन्ह देखा वो ये है कि कैसे ये झूठा विश्वास आएगा, यानी सच्चे विश्वास से गिर जाना, इस तरह की झूठी शिक्षाएं कैसे आएगी. I think this is a sure sign telling us that the last days are very near. मैं सोचता हूं कि ये तो एक निश्चित ऐसा चिन्ह है जो हमें बताता है कि अंतिम दिन तो अभी बहुत ही करीब आ चुके हैं. The last days, the Lord said, when He looks for, will He find faith in this earth? अंतिम दिनों के बारे में परमेश्वर ये कहते हैं कि जब वो पृथ्वी को देखेंगे तो क्या उसे पृथ्वी पर विश्वास दिखेगा. People will lose their faith. लोग तो अपने विश्वास को खो देंगे. The faith that they professed, confessed and proclaimed, they will let it go. विश्वास जिसका उन्होंने अंगीकार किया, दावा किया, वो उस विश्वास को छोड़ देंगे. The faith they preached all around the world, they will forget it and forsake it. जिस विश्वास को उन्होंने पूरे संसार में प्रचार किया, वो उसे त्याग देंगे, वो उसको छोड़ देंगे. Truly speaking, this is literally happening right before our eyes in these days. और सच में अगर कहा जाए तो इन दिनों में ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है. I will give you a few examples. मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं. If you look at the country of Spain, अगर आप स्पेन देश को देखते हैं, there is a church in Spain called the Church of Santa Barbara. स्पेन में एक चर्च है जिसका नाम है चर्च ऑफ सेंटा बारबरा. This church has been operating for over 100 years. ये चर्च 100 साल से भी ज्यादा समय से कार्यरत है. Many people worship God in that church. इस चर्च में बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं. But after 100 years, people stopped coming to the church. They left the faith. लेकिन 100 साल के बाद में लोगों ने इस चर्च में आना बंद कर दिया, अपना विश्वास छोड़ दिया. The church is empty now. चर्च अभी खाली है. Therefore, they've sold the church building. और इसीलिए उन्होंने इस चर्च की बिल्डिंग को बेच दिया. So, what is the church building today? तो आज ये चर्च बिल्डिंग जो है उसमें क्या हो रहा है? It is a skating park. ये तो स्केटिंग का पार्क बन गया है. The church has become a skating park. चर्च अभी स्केटिंग पार्क बन गया है. Scotland. स्कॉटलैंड को ही देखिए. Kelvinside Parish Church was beautifully built and many people worship God for many years. केल्विन साइड पैरिश चर्च जो कि बहुत साल पहले बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया और इसमें बहुत से लोग आराधना किया करते थे. Few years ago, people stopped coming to church. कुछ साल पहले लोगों ने इस चर्च में आना बंद कर दिया. Now, what is that church? और अब उस चर्च में क्या हो रहा है? It is an event center and a night club. अब ये एक इवेंट सेंटर हो गया है और नाइट क्लब के रूप में तब्दील हो चुका है. If you see that photograph, you will see right where the altar was there, it is a boxing ring now. अभी आप देख सकते हैं इस फोटो में कि पहले जहां पर अल्टर हुआ करती थी वहां पर अभी बॉक्सिंग रिंग बनाया गया है. England. इंग्लैंड में ही देखिए. There was a church by the name of St. Nicholas Church. सेंट निकोलस चर्च था. It was beautifully built. Many people worshiped there. ये बहुत ही सुंदर बना था, बहुत से लोग आराधना किया करते थे. But recently, many people left the faith. लेकिन अभी हाल ही में बहुत से लोगों ने अपना विश्वास छोड़ दिया है. And a private owner has bought it and he has turned it into his private home, a villa. एक प्राइवेट ओनर ने इसे खरीद लिया और उसे अपना विला बना दिया है. In Netherlands, और नेदरलैंड्स में there is a church by the name of Dominican. डोमिनिशियन नाम का एक चर्च है. Very beautifully built, high spires, beautiful church. ये बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है. Recently, people stopped coming here हाल ही में लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है and the church is sold. और चर्च को बेच दिया गया. Now it is turned into a bookstore. और अब वो एक बुक स्टोर के रूप में तब्दील हो चुका है. Belgium. बेल्जियम में There is a church by the name of Old Military Chapel. ओल्ड मिलिट्री चैपल नाम का एक चर्च है Beautifully built church. जो बहुत ही सुंदर बनाया गया है. People stopped coming there little by little. लोगों ने धीरे धीरे वहां पर भी आना बंद कर दिया. Finally, this church has been converted into a restaurant. और आखिरकार इस चर्च को रेस्टोरेंट में बदल दिया गया. Turned into a hotel. इसे एक होटल बना दिया गया है. Pennsylvania. पेंसिल्वेनिया में देखिए. In Pittsburgh, there's a church by the name of St. John the Baptist. पिट्सबर्ग में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट नाम का एक चर्च है. You can look at this church, how massive and beautiful it is. आप देख सकते हैं कि ये चर्च कितना बड़ा है और कितना सुंदर है. Today, this church has been converted into a pub. आज ये चर्च पब में तब्दील हो गया है.
Can you believe that? क्या आप ये विश्वास कर पाएंगे? Since 1960, over 10,000 churches in England have been closed. 1960 के बाद से केवल इंग्लैंड में 10,000 से भी ज्यादा चर्च बंद कर दिए गए हैं। They say by 2020, which is next year, another 4,000 churches are going to be closed. वो कहते हैं कि सन 2020 तक यानी अगले साल तक और 4,000 चर्च बंद कर दिए जाएंगे। And what is going to happen there? और वहां पर क्या होने वाला है? They say by next year, और वो इस तरह से कहते हैं कि अगले साल तक around 4,000 new mosques are going to be built. वहां पर लगभग 4,000 नई मस्जिदें बनाई जाएंगी। And the sad thing is, और सबसे दुख की बात तो ये है, places which were once churches are bought by mosques and converted into mosques. ऐसी जगह जो कि पहले चर्च हुआ करती थी उसे खरीद लिया गया है और उसे मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया है। If you look at this picture, you'll be shocked. अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। Once a church, now a mosque. एक बार पहले ये तो चर्च हुआ करता था लेकिन अभी मस्जिद हो गया है। If you look at the interior of another church, अगर आप दूसरे किसी चर्च के इंटीरियर को देखें you'll be shocked to find that the church is no longer a church, but it is a mosque. आप इसे देखकर चकित हो जाएंगे कि ये चर्च अभी चर्च नहीं रहा है लेकिन अब ये मस्जिद में तब्दील हो गया है। Over and over again throughout Europe, churches are being turned into mosques. बार बार पूरे यूरोप में चर्च की बिल्डिंग को वहां पर मस्जिदों में तब्दील कर दिया जा रहा है। It can be very shocking to us and very painful to us. ये हमारे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात और पीड़ादायी बात है। But this is nothing but the fulfillment of Bible prophecy. लेकिन ये और कुछ नहीं है लेकिन बाइबल की भविष्यवाणी की परिपूर्णता है। In the last days, many people will depart from the faith. कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग अपने विश्वास से भटक जाएंगे। We are living in the last days. हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। As I was preparing for today's sermon, जैसे आज के संदेश के लिए मैं तैयारी कर रहा था, the Lord made me to focus my attention on the seventh sign that will precede the last days. परमेश्वर ने मेरा ध्यान इस 7वें चिन्ह की ओर आकर्षित किया जो कि ये 7वां चिन्ह अंतिम दिनों के पहले होने वाला है। And the seventh sign that I'm going to deal with today is nothing but the signs that will be revealed within the church. और ये 7वां चिन्ह और कुछ नहीं लेकिन ये तो ऐसे चिन्ह हैं जो कि चर्च में प्रकट किए जाएंगे। The signs within the church. ये तो चर्च के भीतर के चिन्ह हैं। Until 6, I was talking about signs that the public can see, people can see, others can see. 6 चिन्हों के बारे में जो मैं बता रहा था ये ऐसे चिन्ह हैं जिसे दूसरे लोग देख सकते थे, सामान्य लोग देख सकते थे। But this is very characteristic of the church and it is going to be evident inside the church. लेकिन ये ऐसे चिन्ह हैं जो कि बहुत ही प्रमाणित रूप में होंगे और चर्च के भीतर में ये देखे जाएंगे। How will the church be in the last days? अंतिम दिनों में चर्च कैसा होगा? There are 3 things I want to share. मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं। Number 1, नंबर 1, the church will have a contradictory lifestyle. चर्च की जीवन शैली बिल्कुल विरोध वाली हो जाएगी। In other words, the church will become very hypocritical. दूसरे शब्दों में चर्च जो है ये तो बहुत ही ढोंगी हो जाएगा। 2 Timothy chapter 3 verse 5. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 5 देखिए। Having a form of godliness but denying its power. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। How will the church be in the last days? अंतिम दिनों में चर्च कैसा होगा? They will deny the power and have a form of godliness. वो तो सामर्थ का इनकार करेंगे और केवल भक्ति का भेष वो धरते चले जाएंगे, दिखावा करते जाएंगे। See, godliness is good according to the Bible. बाइबल के अनुसार भक्ति जो है ये तो अच्छी है। The Bible says physical exercise profits nothing, but godliness is profitable both for this world and for the world to come. बाइबल कहती है शारीरिक कसरत से ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन भक्तिपूर्ण जीवन से इस संसार में और आने वाले संसार में लाभ होगा। சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது,
தேவ பக்தியோ இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது. So godliness is a good thing. यानी भक्ति अच्छी बात है, But how will the church be in the last days? लेकिन अंतिम दिनों में चर्च कैसे होगा? That godliness will not be real, it will not be true, but instead it will be very hypocritical. ये जो भक्ति है ये असली नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी, लेकिन ये तो बहुत ही ढोंग वाली भक्ति हो जाएगी. It will just be a lie but put on in a nice grab. ये तो केवल झूठ होगा जो कि एक अच्छे कवर में ढांक कर रखा गया है. William Shakespeare, one of the greatest writers of early days, विलियम शेक्सपियर जो कि शुरू के दिनों के बहुत ही अच्छे लेखक थे, he made this beautiful statement. उन्होंने ये सुंदर वाक्य कहा है. He said, all the world is a stage. उन्होंने कहा पूरी दुनिया एक मंच है. He said, all the men and women are merely players or actors. और सारे जो स्त्री और पुरुष हैं वो तो केवल कलाकार हैं या कठपुतलियां हैं. They have their exits and their entrances. उन्हें अपने समय के अनुसार आना है और अपने समय के अनुसार चले जाना है. He said, one man will play different parts. उन्होंने कहा एक मनुष्य अलग भूमिका निभाएगा. He will do it in 7 different stages of his life. और वो अपने जीवन के अलग अलग स्तर में इसे वो पूरा करते चले जाएगा. He said how the world will be, how the world is in general. और वो कहते हैं कि संसार कैसे होगा, सामान्य रूप में कैसे होगा. But if you look at how the church is becoming these days, लेकिन अगर देखें कि इन दिनों में चर्च कैसा हो गया है, there is lot of parallel between what Shakespeare said and how the church is moving these days. और शेक्सपियर ने जो कहा और चर्च जैसे इन दिनों में है, इन दोनों में बड़ी समानता देखी जाती है. Today, the church is becoming another stage where all the believers play their roles and they act as very good actors. आज चर्च तो बिल्कुल वैसे ही मंच के जैसे हो गया है जहां पर सारे विश्वासी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और कलाकारों के जैसे वो वहां पर एक्टिंग करते चले जाते हैं. The reality, the truth, the honesty is missing. जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, ईमानदारी है, वो नहीं रही. The depth of Christian walk is missing. मसीहत में चलने की गहराई अभी नहीं रही है. Conviction is missing and just outward shell of glam and glitter is shining. जो कायलता है उसकी अभी कमी है, केवल बाहरी रूप और दिखावा और चमक अभी रह गई है. There is no root but there is a big tree. बड़ा पेड़ है लेकिन कोई जड़ नहीं है. There's a big house but no foundation. बड़ा घर तो है लेकिन कोई बुनियाद नहीं है. If I look at the way the church will move hypocritically in the last days, जैसे मैं देखता हूं कि कैसे ढोंग में अंतिम दिनों में कलीसिया चलेगी. there are 3 ways I can explain this for you to understand. आपको समझने के लिए 3 तरीके से मैं इसे बता सकता हूं. Write down these 3 things. इसे लिख लीजिए. Number 1, नंबर 1, the church in the last days will have a lot of sound but it will lack spirit and power. अंतिम दिनों के चर्च में बहुत आवाज तो होगा लेकिन इसमें आत्मा और सामर्थ की कमी होगी. केवल जोर शोर रहेगा, शोर शराबा रहेगा लेकिन सामर्थ की कमी रहेगी. 1 Corinthians chapter 2 and verse 4. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4. There Apostle Paul speaks about this. I think it is verse 5. It says, and my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in demonstration of spirit and of power. यहाँ वचन 4 में प्रेरित पौलुस कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था. So what was he saying? तो वो क्या कह रहा है? When you see my ministry, जब तुम मेरी सेवकाई देखते हो, it was not merely in words, ये केवल शब्दों में नहीं है, but it is coming out of spirit and power. लेकिन ये तो आत्मा और सामर्थ से आती है. That is authentic ministry. ये सबसे प्रभावी सेवकाई है. That is real ministry. ये असली सेवकाई है. That is powerful ministry. ये सामर्थी सेवकाई है. That is the sign of a true Christian. ये एक सच्चे विश्वासी का चिन्ह है. The kingdom of God is not in speeches, it's not in talk, but it is in the power of God. परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ में है. Praise be to God. परमेश्वर की But स्तुति in the हो. last days, लेकिन अंतिम दिनों में the spiritual atmosphere of churches will turn into big spiritual talk, but no spirit inside. चर्च का आत्मिक वातावरण तो केवल बड़ी बड़ी बातें करने में होगा, आत्मिक बातों में होगा, लेकिन वो अपने भीतर में किसी भी तरीके से आत्मिक व्यक्ति नहीं होंगे. यही सब होगा. There will be no real Christian fervor. यानी असली मसीहत नहीं रहेगी.
lot of talk, बहुत सी बातें होगी, but no spirit. लेकिन आत्मा नहीं होगी। These days you can hear words like this, declaration made in very big headlines. इन दिनों में आप ऐसे शब्द सुनते हैं, घोषित करना, इससे बहुत बड़ी हेडलाइन बना दिया गया है। Declaration, declare and you will get it. घोषित करना, घोषित कीजिए और आपको मिल जाएगा। There is another word that is very commonly used. The word is called faith confession. और एक शब्द है जो कि अक्सर उपयोग किया जाता है, वो है विश्वास का अंगीकार। So everything you confess, everything you declare, you will get it. यानी जो भी आप अंगीकार करते हैं, जो भी आप घोषित करते हैं, वो आपको मिल जाता है। You don't have to worry about the accompanying deeds, the accompanying faithfulness, the accompanying lifestyle. That is not important. Just declare faith words and it will happen. आपको ध्यान नहीं देना है कि उसके लिए आपको कौन से काम करने हैं, कैसी विश्वास योग्यता रखनी है और किस तरह से उसके अनुसार जीवन शैली जीनी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बस घोषित कीजिए, अंगीकार कीजिए और आपके लिए हो जाएगा, वो कहते हैं। There is lot of noise but no power. यानी शोर शराबा और आवाज तो बहुत है, लेकिन कोई सामर्थ नहीं है। There is no leading of the spirit. आत्मा की अगुवाई नहीं है। Whatever they dream, whatever they desire, whatever they like, they will say it with your mouth. जो भी वो सपना देखते हैं, जो भी वो इच्छा रखते हैं, जो भी उन्हें पसंद है, वो अपने मुंह से कहते चले जाते हैं। And they say that God is going to perform because I said it with my mouth. वो कहते हैं मैंने अपने मुंह से इसे कहा है, इसलिए परमेश्वर इसे जरूर करेंगे। Now these are the kind of words where you will hear, I see, I see, I see, it is coming, it is coming, I see it, I see it. आप इन शब्दों को देखेंगे, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, वो आ रहा है, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, वो आ रहा है। इस तरह से वो कहते चले जाते हैं, दोहराते चले जाते हैं। Oh, I imagine it, I can see it in this eyes, I can see it here, I can see it there, I can imagine all of these big words, you can hear them. मैं कल्पना कर सकता हूं, मैं उसे देख सकता हूं, मैं देखता हूं कि वो यहाँ पर है, मैं देख सकता हूं वो वहां पर। इस तरह से बहुत से शब्दों का उपयोग करते हैं। And these days you can see lot of noise in churches. इन दिनों में आप चर्च में ऐसे बहुत सा शोर शराबा देख सकते हैं। Pumped up volume. वो तो बस आवाज ऐसे बहुत जोर से बढ़ा देते हैं। Lot of whistling sounds, howling sounds, barking sounds, all kind of sounds. बहुत सी सीटियों की आवाज होती है, चीखने चिल्लाने की आवाज होती है, हर तरह की आवाजें वहां पर होती हैं। But the power of God is lacking in most of these places. लेकिन ऐसी बहुत सी जगह में परमेश्वर की सामर्थ की कमी है। Pastor Sam Sundaram used to say, more noise is not the evidence of power. पास्टर सैम सुंदरम इस तरह से कहते थे, ज्यादा शोर शराबा इस बात का सबूत नहीं है कि वहां पर सामर्थ है। But today people go after noise. लेकिन आज के इन दिनों में लोग तो केवल शोर शराबे और आवाज के पीछे भागते रहते हैं। Today you can also see people carrying horns, ram horns, and then they keep blowing shofar, blowing this direction, that direction, all four sides, saying the Jericho wall is falling. Whatever is falling, I don't know. Everything is falling. आज तो इन दिनों में लोग नरसिंगा लिए चलते हैं, शोफार उसे कहते हैं। वो इस तरफ उसे फूंकते हैं, दूसरी तरफ उसे फूंकते हैं, चारों दिशा में फूंकते हैं, कहते यरीहो की शहरपनाह गिर रही है। So they say, now we are going to blow the horn. और फिर वो कहते अभी हम यहाँ पर नरसिंगा फूंकेंगे। Oh, when we blow, everybody clap your hands because the power of God is going to come down. और जब हम नरसिंगा फूंकेंगे तो आप सब लोग ताली बजाइए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उतर आ रही है। Everybody starts clapping. और सब लोग ताली बजाने लग जाते हैं। There's a big trumpet sound. और बड़ी तुरही का शब्द होता है। Sound is there. आवाज तो वहां पर है, No power. लेकिन सामर्थ नहीं है। No power. कोई सामर्थ नहीं है। I'm blowing now. India is getting saved. अब मैं तुरही फूंक रहा हूं, पूरा भारत देश उद्धार प्राप्त कर लेगा। எக்காலம் ஊதுறோம், இந்தியா என்ன செய்யப்பட போகிறது? ரட்சிக்கப்பட போகிறது. எங்க பைபிள்ல இருக்குது எக்காலம் ஊதுனா ரட்சிக்க போறோம்னு? तुरही फूंकते पूरे देश का उद्धार होगा, ये पूरी बाइबल में कहां पर लिखा है? கையில ஆணை பிடிச்சிட்டா போதும், வாயில வர்றதுதான். மதில் விழுது, பணம் வருது, கட்டு உடையுது, ராஜ்யங்கள் மாறுகிறது. ஒன்றும் மாறலையா? ஊதுறதான் ஊதிக்கிட்டே இருக்கும். Lot of sound, no power. बहुत ज्यादा शोर लेकिन सामर्थ नहीं। People are so happy to see all these gimmicks on stage. लोग मंच पर इस तरह से सारे खेल को होते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। Oh, shofar is blown. They brought it from Israel. ओ देखो ये शोफार फूका गया है, और इस नरसिंगे को वो तो इस्राएल से लेकर आए हैं, वो इस्राएल गए थे वहां से लाया है।
India is saved. India has become the land of Christ. भारत ने उद्धार प्राप्त कर लिया है। भारत देश तो अभी मसीह यीशु की जमीन हो गई, मसीह यीशु का देश हो गया है। Lot of sound, बहुत सी आवाज है, no strength. लेकिन कोई बल नहीं है। Number 2, नंबर 2, lot of show but no strength. बहुत सा शो है, बहुत सा दिखावा है, लेकिन उसके अंदर में कोई भी सामर्थ नहीं, कोई भी बल नहीं है। 2 Timothy 3:5. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 5। Form of godliness but no power. भक्ति का भेष तो धर लिया है, लेकिन कोई भी सामर्थ नहीं है। A lot of show बहुत सा दिखावा है, केवल ऐसे शो करते चले जाना है, but no power. लेकिन कोई सामर्थ नहीं है। Look at the Christianity today. आज मसीहत को देख लीजिए। Why are you a Christian? How are you a Christian? आप क्यों मसीह विश्वासी हैं और आप कैसे मसीह विश्वासी हो गए हैं? What is your relationship with Christ? None of these questions will be answered by many of the people. मसीह यीशु के साथ में आपका संबंध क्या है? ऐसे सवालों का बहुत से लोग जवाब भी नहीं दे पाते हैं। Many people don't have answers. बहुत से लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। What is your relationship with Jesus Christ? यीशु मसीह के साथ आपका क्या संबंध है? They don't know. वो नहीं जानते हैं। How are you a Christian? तो आप कैसे विश्वासी हैं? I have a Bible. मेरे पास में एक बाइबल है। I have verses in my house. मेरे घर में मैंने बाइबल के वचन ऐसे लगा कर रखे हैं। I go to church every week. और मैं हर हफ्ते चर्च में जाता हूँ। I give offerings. मैं अपनी भेंटें देता हूँ। I even go for ministry. और मैं सेवकाई के लिए भी जाता हूँ। They have lot of external things they will do, वैसे बाहर के बहुत से काम करते हैं, ऐसी बाहरी कामों को करते जाते हैं, but no personal relationship with Jesus. लेकिन यीशु के साथ में किसी तरह से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। There is no inward change, transformation. उनके भीतर में कोई बदलाव नहीं आया है, कोई रूपांतरण नहीं हुआ है। The name is changed, the clothes are changed, appearance is changed, everything is changed except for the transformation of the heart. नाम बदल दिया गया है, उनका दिखावा अलग हो गया है, और सब कुछ बदल गया है, लेकिन उनका दिल नहीं बदला है। दिल को छोड़कर उनकी जिंदगी में सारी बाहरी बातें जो है बदल गई, No change. लेकिन भीतर में कोई बदलाव नहीं आया है। Look at the church. चर्च को ही देख लीजिए। The true condition of the church is camouflaged by a million activities. चर्च की जो असली दशा है वो तो अभी बहुत सी क्रियाओं के द्वारा जोड़ दी गई है। Lot of activities. चर्च में बहुत सी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। Revivals, conferences, forums, festivals, fellowships, lot of things happening. रिवाइवल, फेस्टिवल, फोरम, फेलोशिप, इस नाम से उस नाम से बहुत से ऐसी एक्टिविटीज चलती, बहुत सी क्रियाएं चलती रहती हैं। But many people don't really experience the power of the Spirit in their personal life. लेकिन बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्मा की जो सामर्थ है उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसे वो महसूस नहीं कर पाते हैं। Lot of noise, but no spirit. बहुत सी आवाज है लेकिन आत्मा नहीं है। Lot of show, but no strength. बहुत सा दिखावा है लेकिन असली बल शक्ति नहीं है। Lot of activity, religious activity going on. बहुत सी एक्टिविटी है, बहुत सी धार्मिक क्रियाएं वहां पर उनके मध्य में होती रहती है, But in their personal life, they are not victorious. लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जीवन में विजयी नहीं हैं। Still struggling with certain sinful habits. अभी भी पाप में आदतों से लड़ते चले जा रहे हैं, But outwardly, लेकिन बाहरी रूप में oh, very good Christian. वो तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं। Church going Christian. वो तो चर्च में जाने वाले विश्वासी हैं। Devoted Christian. वो तो समर्पित विश्वासी हैं, But inner life, no transformation. लेकिन भीतरी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। What is this hypocrisy that will be in the last days? अंतिम दिनों में ये कैसा ढोंग वहां पर होगा? The third one will be देखिए, तीसरा तो ये है Matthew chapter 7 verse 24 to 27. मत्ती अध्याय 7 वचन 24 से लेकर वचन 27 तक। Lofty structures but no stability. बड़ी बड़ी इमारतें होगी लेकिन कोई स्थिरता नहीं होगी। Lofty structures, no stability. यानी बहुत बड़ा ढांचा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होगी, लेकिन कोई भी स्थिरता नहीं होगी। What is the story? ये कहानी क्या है? Jesus talked about two houses that a wise man and a foolish man built. यीशु ने इन दो घरों के बारे में बनाया, एक को बुद्धिमान ने बनाया और दूसरे घर को एक मूर्ख ने बनाया।
One man built his house upon the rock, which is Jesus Christ and his word. The other man built his house on the sand, which is the world. एक मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया, यीशु मसीह और उसके वचन पर बनाया, तो दूसरे ने संसार यानी रेत पर बनाया। Both these houses appeared so beautiful on the outside. ये दोनों घर बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देते थे। Both of these houses looked similar on the outside. बाहर से ये दोनों घर एक जैसे ही दिखते थे। Both of these houses looked strong on the outside. ये दोनों घर जो हैं, ये तो बाहर से बहुत ही मजबूत दिखाई देते थे। But one day, something happened. लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ। Both the houses met with disasters such as wind, rain and floods. इन दोनों घर पर विपत्तियां पड़ी, जैसे कि तेज आंधी चली, हवा चली, बारिश और बाढ़ आई। The house on the rock stood, the house on the sand had a great fall. जो चट्टान पर घर बना था वो तो मजबूत रहा, लेकिन जो घर रेत पर बना था वो तो ढा दिया गया। What is the lesson? इसमें पाठ क्या है? In the last days, अंतिम दिनों में people will have a structure around them and they will show themselves to be very strong Christians. अंतिम दिनों में लोग अपने आसपास एक बहुत बड़ा मजबूत ढांचा रखेंगे और वो इस तरह से दिखाएंगे कि वो तो बहुत ही अच्छे मजबूत ऐसे विश्वासी हैं। They will look very strong on the outside. वो बाहरी रूप में बहुत ही बलवान और मजबूत दिखेंगे, But in the inside, there is no foundation for them without any connection to the word of God. लेकिन उनके भीतर में उनके पास कोई भी बुनियाद नहीं है, परमेश्वर के वचन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। They will be carrying very beautiful, very expensive Bibles. वो तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही महंगी बाइबल को लिए चलेंगे। They will have apps in their mobile phones and iPads and iPhones. Nice apps they'll have in their phone. उनके मोबाइल फोन में, आईफोन में, आईपैड में अच्छे अच्छे ऐप्स होते हैं। Bible apps. बाइबल ऐप्स उनके मोबाइल में होते हैं। But the thing is, लेकिन बात तो ये है, it has been so many years or months or weeks before they actually opened their Bible and read one verse. लेकिन सच में कई हफ्तों पहले या कई महीनों पहले उन्होंने बाइबल कभी खोली थी और उसमें से एक वचन पढ़ा था। इसको बहुत समय बीत चुका है। They do not spend 10 minutes in a year reading the Bible alone. पूरे साल भर में एकांत में बैठकर बाइबल पढ़ने के लिए उन्होंने 10 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं बिताया है। They come and listen to somebody preaching for 2 hours. वो आकर किसी और का प्रचार 2 घंटे तक बैठकर सुनते हैं, But they never sit with the word of God for a few minutes. लेकिन वो परमेश्वर के वचन के साथ 2 मिनट के लिए भी कभी नहीं बैठते हैं। What is happening there? यहाँ पर क्या हो रहा है? The structure is beautiful. ये जो ढांचा है ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। Externally, you are showing yourself to be a very strong Christian. बाहरी रूप में आप दिखा रहे हैं कि आप तो बहुत ही मजबूत विश्वासी हैं, But a little temptation, little problem, little wind, little rain, little flood, flat. लेकिन बस थोड़ी सी परीक्षा आई, थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी आंधी आई, थोड़ी सी बारिश आई, बिल्कुल गिरकर ढह जाते हैं। Very sad these days, a spiritual person is defined by their external progress and external success. दुख की बात है कि इन दिनों में जो आत्मिक व्यक्ति है वो तो केवल उनके बाहरी सफलता के द्वारा या फिर उनके केवल बाहरी दिखावे के द्वारा पहचाने जाते हैं। उन्हें इस तरह से हम परखते हैं। You see, even the preaching today in many circles is like in order to define yourself as a Christian, you define them by their worldly wealth, worldly success, worldly promotion and worldly positions. देखिए, यहाँ तक कि जो विश्वासी हैं वो अपनी जो परिभाषा है ये दिखाते हैं कि हम मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, हम विश्वासी हैं। वो संसार के पैसे, संसार की संपत्ति, संसार की सफलता और उन सारी बातों के द्वारा वो उनकी परिभाषा करते हैं। Very sad, there are some sermons when I hear they would say, the sign that you are blessed by God or you are a Christian is that you are wealthy. बड़े दुख की बात है कि आज इस तरह से प्रचार हो रहा है कि आप विश्वासी हैं, आपको परमेश्वर ने आशीष दी है। इस बात का चिन्ह ये है कि आप बहुत ही धनी हैं। You should be rich. आपको धनी होना ही होगा। I heard one preacher preach like this. मैंने एक प्रचारक को ऐसे प्रचार करते हुए सुना। He says that how will the world believe in your message if you are not rich? उन्होंने कहा कि अगर आप धनी नहीं हैं तो ये संसार कैसे आपके संदेश पर विश्वास करेगा।
He says, how will they know that your God is alive if you are not rich? वो कहते हैं कि अगर आप धनी नहीं हैं तो वो कैसे जानेंगे कि आपके जो परमेश्वर हैं वो तो जीवित हैं। So the sign that you are worshipping a living God, the true God, is that you are a very rich person. इसलिए ये चिन्ह है कि आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये इस बात को दिखाएगा कि आप तो बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। So my question is, तो मेरा सवाल ये है, what will they understand when they look at somebody like Bill Gates? जब वो बिल गेट्स जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो उसे देखने के बाद में क्या समझते हैं? बिल गेट्स जैसा जो धनी व्यक्ति जब उसे कोई देखता है तो वो उसके बारे में क्या समझते हैं? So whatever he worships is true? यानी क्या ये कि जिसकी भी वो आराधना करते हैं वो तो बिल्कुल सच्चे हैं? If the measure of your spirituality is your riches, अगर आपकी आत्मिकता का नाप आपकी धन संपत्ति है, I tell you, the most spiritual person in the world is Bill Gates. तो फिर मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस संसार में सबसे ज्यादा आत्मिक अगर व्यक्ति कोई है तो वो तो बिल गेट ही होगा। Today all the sermons are going in this direction. आज सारे संदेश केवल इसी दिशा में जा रहे हैं कि आप धनी होने चाहिए। Messages are about worldly wealth, worldly success, worldly positions, everything about the world. सारे संदेश जो है वो तो केवल सांसारिक धन, सांसारिक ओहदे और केवल धन संपत्ति से जुड़े हुए हैं। Today the promises that is given is about you will buy expensive cars. आज की प्रतिज्ञाएं इस तरह से दी जाती हैं कि आप तो बहुत ही महंगी कार खरीदने वाले हैं। You will buy a 5-bedroom house. और आप तो 5 बेडरूम का घर खरीदने वाले हैं। You will hereafter travel only by first class. अब से आगे आप तो केवल फर्स्ट क्लास में ही यात्रा करते चले जाएंगे। God is blessing you. परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। You are going to buy jets. और आप जेट प्लेन खरीदने वाले इस तरह से कहते हैं। Do you see where we are going as a church? क्या आप देख रहे हैं कि चर्च के रूप में हम कहां पर जा रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं? Now the new thing that they have brought up is, अब तो उन्होंने बिल्कुल नई बात लाई है। now they have redefined the economic status of Jesus himself. वो तो अभी यीशु मसीह के आर्थिक स्टेटस के बारे में खुद एक नई परिभाषा बनाकर बैठे हैं। Now what they are saying? और वो क्या कह रहे हैं? Jesus is not the poor old child who was born in a small place called Bethlehem. यीशु अब वो एक गरीब बच्चा जो बेथलेहम में जन्मा था वैसे नहीं है। Jesus was a rich man. यीशु तो बहुत ही धनी था। I heard a preacher preach. He says, the father of Jesus, Joseph, was not a just carpenter and all. He is actually a big contractor. मैंने किसी प्रचारक को इस तरह से प्रचार करते हुए सुना कि यीशु के पिता जो यूसुफ थे वो कोई एक बढ़ई नहीं थे, वो तो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। कुत्ता तच्चन लिया और फिर ये कॉन्ट्रैक्टर। He was designing cities and all. वो तो शहर को डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे। And they say, you know what? You see that Jesus is riding on a donkey. और आप तो देखते हैं कि यीशु जो गधे पर सवार है। You don't know about the history. आप इतिहास के बारे में नहीं जानते। Actually, that day's donkey is today's Mercedes Benz. क्योंकि सच में उन दिनों के जो गधे हुआ करते थे वो तो आज के दिनों के मर्सिडीज बेंज हैं। You know, Judas was carrying the money bag of Jesus. क्या आप जानते हैं कि यीशु की पैसों की थैली यहूदा लिए चलता था? So the image that they create in your mind is like a big bag that you carry on your head. तो वो अपने मन में इस तरह से वो कल्पना करते हैं कि वो एक बड़ी थैली अपने सिर पर लिए चलता था। I was wondering one day, एक दिन मैं ये सोच रहा था, if Jesus had so much of cash in his hand, he didn't know how to spend, carrying, somebody carrying. यीशु के पास में अगर इतनी कैश थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खर्च करूं और कोई उसे उठाकर लिए चल रहा है। One day Peter comes to Jesus wondering how they are going to pay tax. तो एक दिन पतरस यीशु के पास में आता है और सोचता है कि वो कैसे कर चुकाएंगे। Jesus needed only half a penny. यीशु को आधा शकील चाहिए था। Half penny is the tax. आधा शकील वो कर था। When he came to Jesus, Jesus would have told him, Peter, don't be worried, go to my treasurer, he has got a lot of money.
pay the tax for all the 12 fellows, including me. जब पतरस यीशु के पास में आया तो यीशु ने उससे कहा होगा, पतरस तू चिंता मत कर, मेरे पास में बहुत सा पैसा है, तुम 12 लोगों के लिए भी कर चुका देना और साथ साथ में मेरा भी कर चुका देना। How did Jesus handle that? लेकिन यीशु ने उससे कैसे व्यवहार किया? Did he put his money in his pocket and then take out the money? क्या उसने पैसे जेब में रखा और जेब से पैसे निकाला? Did he ask somebody to give it? क्या किसी से ये चुकाने के लिए उसने कहा? He said, go and catch one fish. There will be a silver coin for you and me, pay it. उसने कहा, जाकर एक मछली पकड़, उसके मुंह से चांदी का सिक्का निकलेगा और तू जाकर अपने लिए और मेरा भी कर चुका देना। I want you to consider the following. मैं चाहता हूं कि आप इस बात के बारे में जरा गौर से सोचें। In the case of Jesus, यीशु की केस में he always preached from borrowed boats. वो तो हमेशा उधार लिए हुए नाव में ही प्रचार करते थे। None of the boats was his own. वो जो सारी नावें थी उनमें से एक भी नाव उसकी खुद की नहीं थी। He is very rich man. और वो तो बहुत ही धनी व्यक्ति है कहते हैं। लोग कहते हैं कि यीशु तो बहुत ही धनी थे। Jesus, यीशु when he wanted to multiply the food for 5,000 people, he borrowed it from a small boy. यीशु ने जब 5,000 पुरुषों के लिए भोजन बहुगुणित करना चाहा, उस समय भी उन्होंने एक छोटे बच्चे से उसका भोजन उधार लिया। What a rich man. कितना धनी व्यक्ति। When Jesus had this triumphal entry into Jerusalem, जब यीशु ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, he took a borrowed donkey's colt and came on that. उसने उधार में गधी का बच्चा लिया और उस पर सवार होकर आए। What a rich man. कितना धनी व्यक्ति। And after he died, और उसके मरने के बाद he was buried in a borrowed tomb of Joseph of Arimathea. What a rich man. वो तो अरमतिया के यूसुफ के उस उधारी के कब्र में दफनाए गए। सच में बताइए कितने धनी व्यक्ति थे वो। Be careful these last days. इन अंतिम दिनों में सावधान रहिए। I'm not saying we should not be rich. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें धनी नहीं होना चाहिए, But when you start defining that your riches is the sign of your spiritual prosperity, we are in a erroneous gospel. अगर हम इस तरह से ये कह रहे हैं कि हम आत्मिक रीति से संपन्न होने के चिन्ह हैं कि हम पैसों के रूप में बहुत धनी हो जाएंगे, तो यहाँ पर सुसमाचार में मतभेद है। All rich people necessarily need not be very spiritual. जरूरी नहीं कि हर एक धनी व्यक्ति बहुत ही अच्छा आत्मिक व्यक्ति होगा। And all poor people need not be worldly. और जरूरी नहीं कि सारे गरीब लोग सांसारिक लोग हो। Whether you are rich or poor in this world, it doesn't matter before God. चाहे आप इस संसार में धनी हो या फिर कंगाल हो, परमेश्वर के सामने इसका कोई मायने नहीं रहता है। We have to be rich before God. हमें परमेश्वर के सामने धनी होना है। Hallelujah. हालेलुया। Come to Revelation 3:17. तो आइए अभी प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 17 को यहाँ पर हम देखते हैं। Look at what the word of God comes to that church. देखिए उस चर्च में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इस तरह से इस कलीसिया के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ ये वचन है। What is he saying? वो यहाँ पर क्या कहता है I am very rich. कि मैं तो बहुत ही धनी हूँ, I have acquired lot of wealth. मैंने बहुत सा धन जमा करके रखा है, I have no need of anything. अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। That is his judgment. ये तो उसका खुद का विचार है। But what is God's understanding of the same person? लेकिन उसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर परमेश्वर क्या सोच रहे हैं You are wretched, pitiful, poor, blind and naked. कि तू तो अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। Don't fall for external alone gospel. केवल ऐसे बाहरी अकेले में रहने वाले सुसमाचार के पीछे मत जाइए। The last days, they will have a show of godliness, but there will be no spirit. अंतिम दिनों में वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन आत्मा नहीं होगी। They look very strong on the outside, वो तो बाहरी रूप में बहुत ही ऐसे मजबूत दिखेंगे, but they will not have foundations on the inside. लेकिन भीतर में उनके पास कोई नींव नहीं होगी। My prayer is God will open our eyes and make us understand
that whether we have money or not, the most important thing is our foundation is on Jesus Christ. मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोले और हम जान ले, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हमारी बुनियाद प्रभु यीशु मसीह होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even if we have to lose everything to follow Christ, I think that is the greatest blessing. अगर हमें मसीह यीशु के पीछे चलने के लिए सब कुछ खो देना पड़े, तो भी मैं सोचता हूँ कि वो तो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष होगी, सबसे महान आशीष होगी। Hallelujah. हालेलुया। Jesus looked at the rich young man and said, यीशु ने उस धनी सरदार की ओर देखकर कहा, You want to follow me? तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो Sell all you have, give it to the poor, and then follow me. तो अपना सब कुछ बेच दो, कंगालों को दे दो और फिर मेरे पीछे हो लो। Having riches in this world is not the indicator of your spiritual growth. इस संसार में धन संपत्ति होना ये इस बात को नहीं दर्शाता है कि आप तो आत्मिक उन्नति करने वाले व्यक्ति हैं। The first state of the church in the last days will be a contradictory lifestyle. अंतिम दिनों में कलीसिया का जो पहला स्तर होगा वो तो बिल्कुल अलग मतभेद वाली जीवन शैली होगी। They will look very nice on the outside, spiritual on the outside, inner life has nothing. वो तो बाहरी रूप में बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत ही आत्मिक दिखेंगे, लेकिन भीतरी आत्मिक जीवन कुछ भी नहीं। Rich on the outside, poor on the inside. बाहर से तो वो धनी होंगे, लेकिन भीतर से वो कंगाल होंगे। I pray that God will cover us and our church from falling into this trap. मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें ढांके रखे और इस जाल में पड़ने से हमें सुरक्षित रखें। Hallelujah. हालेलुया। The second sign in the last days regarding the church. अंतिम दिनों में चर्च के बारे में दूसरा चिन्ह, Write it down. इसे लिख लीजिए। The church in the last days will choose what to listen. अंतिम दिनों में जो चर्च होगा, जो कलीसिया होगी, वो इस बात का चुनाव करेगी कि वो क्या सुनना चाहती है। 2 Timothy 4:3-4. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 और 4। For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths or fables. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। In the last days, अंतिम दिनों में people will choose churches that preach what they want, not what they need to hear. अंतिम दिनों में लोग ऐसे चर्च का चुनाव खुद करेंगे जहां पर जो वो सुनना चाहते हैं वही प्रचार किया जाएगा, जो उनकी जरूरत है वो वहां पर प्रचार नहीं किया जाएगा। They would choose preachers who will give them temporary pleasure, temporary joy. वो ऐसे प्रचारकों को चुनेंगे जो उनको केवल कुछ समय का आनंद और केवल कुछ समय की खुशी देंगे। ऐसे प्रचारकों को वो खुद चुनेंगे। They will choose their own preachers according to their own lusts. अपनी अभिलाषा के अनुसार वो अपने लिए अपने प्रचारक चुन लेंगे। We see that the Lord had promised that He will give shepherds according to His own heart. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो अपने दिल के अनुसार वो हमें चरवाहा देने वाले हैं। But today, the story will be different in the last days. लेकिन अंतिम दिनों में ये कहानी बदल जाएगी। They will not seek God's direction to find out their own pastors, but they will choose pastors according to their own lust, their own desire, their own whim and their own fancy. वो तो परमेश्वर की इच्छा से अपने लिए पास्टर नहीं ढूंढेंगे, लेकिन वो तो अपनी खुद की इच्छा से, अपने खुद की अभिलाषा के कारण अपने लिए अपने चुनाव किए हुए पास्टर का चयन करेंगे। So they will demand what to be preached. तो वो इस बात की मांग करेंगे कि वहां पर क्या प्रचार किया जाना चाहिए। They will like a preaching if it is to their liking. अगर प्रचार उन्हें पसंद आता है तभी वो उस प्रचार को पसंद करेंगे। ऐसे वो लोग होंगे। If it is not to their liking, if it doesn't match with their lust, they will walk away. अगर ये उन्हें पसंद नहीं आता है और उनकी अभिलाषा के साथ में अगर मेल नहीं खाता है तो वो वहां से चले जाएंगे। 1 Timothy chapter 4 and verse 1. पहला तीमुथी अध्याय 4 वचन 1। The Spirit clearly says that in the later times,
Some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसी शिक्षा पर वो मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। 2 Timothy 3:13. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 13। Evil doers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। The last days, this is how it will be. अंतिम दिनों में ये सब कुछ ऐसे ही होने वाला है। So they will preach things that will deceive themselves and deceive others. यानी वो तो ऐसी बातों का प्रचार करेंगे जो उन्हें धोखा देगा और दूसरों को भी धोखा देगा। And the Bible is shockingly revealing that it happens through deceiving spirits. और बाइबल चौंका देने वाली बातों के द्वारा हमें बताती है कि ये तो भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा होगा। Deceiving spirits. ये तो भरमाने वाली आत्माएं होगी। How cautious we should be when we listen to a preaching. जब हम प्रचार सुनते हैं तो हमें सच में कितना सचेत हो जाना चाहिए। Without the knowledge of the word of God, we can be deceived in a moment's notice. परमेश्वर के वचन के ज्ञान के बिना हम बस पल भर में ऐसे ही धोखा खा सकते हैं। That's why today churches are becoming seeker friendly churches. इसीलिए आज की जो कलीसिया है वो तो ऐसे जो ढूंढने वाले लोग हैं उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करती हैं। They are catering to the needs of seekers, newcomers who come inside the church. जो नए लोग कलीसिया में आते हैं उनकी जरूरतों को वो देखकर उसके अनुसार बोलते हैं। They want to be men pleasers than God pleasers. वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होने से बढ़कर मनुष्य को प्रसन्न करने वाले होना चाहते हैं। Therefore, instead of preaching the word of God without difference, they go and preach very motivational sermons. और इसीलिए परमेश्वर के वचन को बिना मिलावट के प्रचार करने के बजाय वो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले संदेश देते चले जाते हैं। Now the Bible says the last days people will be interested in listening to lot of stories. और अभी बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में लोग तो बहुत सी कहानियां सुनने में दिलचस्पी लेंगे। And today the preachers also love to speak only stories. और आज के प्रचारक भी बहुत सी कहानियां बताना बहुत पसंद करते हैं। I think earlier pastors used to, preachers used to search for stories to illustrate their sermon. पहले जैसे पास्टर जो प्रचारक हुआ करते थे वो अपने संदेश को समझाने के लिए छोटी छोटी कहानियां ढूंढते थे। But today the whole thing is turned the other way. लेकिन आज तो पूरी तरह से सब कुछ उल्टा हो गया है। The sermon is a story and in the end there is one single verse. और पूरा संदेश जो है वो तो उनकी कहानी रहता है और आखिर में एक अकेला वचन बताते हैं। Now the introduction is, I was reading this story and I remembered a verse. और उसका परिचय ऐसा होता है कि मैं एक कहानी पढ़ रहा था और उस समय मुझे एक वचन याद आया। And therefore the message is a story, in the end as a topping there is a verse. और इसीलिए पूरा संदेश तो बस केवल एक कहानी है और आखिर में टॉपिंग के जैसे एक वचन है। Gone are the days when people used to start a service with reverence in prayer, with a scripture reading, singing worship songs. These are slowly, fading away. अभी तो वो दिन मानो बीत गए हैं, चले गए हैं, जहां पर लोग परमेश्वर का भय मानते हुए आराधना की शुरुआत करते थे, बाइबल पढ़ते थे, फिर आराधना करते थे और वचन का प्रचार किया जाता था। There are some churches which start their services with a trailer movie trailer. कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो कि अपनी सभा की शुरुआत ट्रेलर मूवी के साथ में करते हैं, मानो किसी फिल्म के ट्रेलर को दिखाए जैसे वो सब कुछ दिखाते हैं। There are churches today where after the service the pastor is announcing, today after church, as a church we have booked this movie in this theater, let's go and watch the movie. आज ऐसे चर्च हैं जहां पर सभा के बाद में पास्टर अनाउंस करते हैं कि हमने ये मूवी टिकट बुक की है, आज चर्च के रूप में हम ये फिल्म देखने वाले हैं। Let's all go and enjoy a movie. तो चलो हम सब मिलकर एक साथ जाते हैं और उस फिल्म का आनंद उठाते हैं। What is the explanation? और इसके पीछे विवरण क्या देते हैं? I want our people to know what is happening in the world. मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जाने कि संसार में क्या हो रहा है। பாவம் பைபிளை ரொம்ப படிச்சு முடிச்சிட்டாங்க, இப்போ உலகத்தை தான் பாவம் தெரியாமல் இருக்காங்க. பாவம் நம்ம என்ன சொல்லணும், அது என்ன பண்ணிடணும், அதை பிரசங்க முடிவில் ஒரு படம் பார்த்து உலகம் எப்படி போகுதுன்னு என்ன பண்ணணுமா
தெரிஞ்சுக்கணுமா? Last days. अंतिम दिनों में There was times when they started a sermon with a verse. Now the sermon is started with a joke. पहले एक समय था जब बाइबल के वचन से वो संदेश देना शुरू करते थे, लेकिन अभी इन दिनों में चुटकुला बताकर वो अपना संदेश देना शुरू करते हैं। Itching ears and sweet-mouthed preachers. ये तो बस कान की खुजली दूर करने वाले और मुंह से अच्छी बातें करने वाले प्रचारक हैं। Do you know, in America and many other European countries, there is a new culture called church in a pub. देखिए, अमेरिका में और बहुत से ऐसे यूरोपियन देशों में ऐसा कल्चर आ चुका है जहां पर वो कहते हैं कि चर्च इन अ पब, यानी पब के अंदर वो चर्च की सभा करते हैं। Church in a pub. चर्च इन अ पब यानी पब में वो चर्च की सभा करते हैं। Now, there is a welcome note given to the people who are coming to that church. और उस चर्च में आने वाले लोगों को वो एक वेलकम नोट देते हैं। I'll give you a sample. चलिए मैं आपको एक सैंपल बताऊं। Welcome to pub church. उस वेलकम नोट में लिखा होता है, पब चर्च में आपका स्वागत है। We are a church in a pub and the Spirit is with us. हम ऐसे चर्च हैं जो कि पब में हैं और आत्मा हमारे साथ में है। I don't know what that spirit they are mentioning. I don't know. मुझे पता नहीं वो कौन से स्पिरिट की बात कर रहे हैं। In this place, feel free to move about, help yourself to food and drink, and express yourself openly. इस जगह पर आप खाने और पीने के लिए पूरी आज़ादी महसूस करें और अपने आप को यहाँ पर प्रकट करते चले जाएं। We come together with a variety of thoughts, stories, talents, hopes, and hurts. हम बहुत से अलग अलग योग्यताएं, कहानियाँ और बहुत सी आशा और चोट लेकर आते हैं। All we bring is welcome. हम सब स्वागत लेकर आते हैं। We pray that in coming together with all our differences and with the Spirit, we participate in a new divine reality. हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे इन सारी बातों में, जहाँ पर हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और हमारे साथ में आत्मा है, हम यहाँ पर इस ईश्वरीय वास्तविकता में जुड़ जाते हैं। This is a sacred place. ये तो पवित्र जगह है। Invitation. इस तरह का न्योता वहाँ पर होता है। Can you see where it is going? क्या आप देख सकते हैं कि ये सच में कहाँ पर जा रहा है? These are the days when if you rebuke, when you correct, when you discipline, nobody wants it anymore. ये ऐसे दिन है जहाँ पर आप किसी को डांटते हैं, किसी को अनुशासित करना चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं, तो कोई सुनना नहीं चाहता है। 2 Timothy 4:2. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 4 वचन 2। What did Paul say to Timothy? तिमोथियुस को यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। इस तरह से कहता है। I understand this comes as a package. देखिए, ये पूरे एक पैकेज के रूप में आता है। There are some people who take advantage of this. They keep on shouting all the time, chastising all the time, being harsh on people. I'm not saying that. कई बार तो लोग इसका लाभ उठाते हैं, हमेशा वो चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं और वो इस तरह से ताड़ना देते हैं। मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। I'm not saying you have to act in a carnal manner. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शारीरिक रूप में काम करना होगा। But a church needs correction, a church needs rebuke, a church needs encouragement, all of that in place. लेकिन कलीसिया को निश्चय ही डांट की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, इनका अपना अपना स्थान है। Sometimes when you correct, today people don't enjoy. अगर आज आप कई बार किसी को सुधारते हैं तो लोग उसका आनंद नहीं उठाते हैं। If you warn somebody about a danger, about a sin, they say don't judge anybody, don't judge. अगर आप किसी को किसी खतरे या पाप के बारे में चेतावनी देते हैं तो वो तुरंत कहते हैं कि आप किसी का भी इस तरह से न्याय मत कीजिए। People who say we have to live holy lives, oh, you are all Pharisees, you are all old covenant people. जो लोग ये कहते हैं कि हमें पवित्रता का जीवन जीना है, अरे तुम तो फरीसी हो, पुरानी वाचा के लोग हो। Old covenant. तुम तो बस पुरानी वाचा के लोग हो, पुराने विचार वाले हो। You are practicing the law of Moses. तुम तो मूसा की व्यवस्था का पालन कर रहे हो। You are preaching works. तुम तो कामों का प्रचार कर रहे हो। You are making people guilty and asking them to repent again and again. तुम लोगों को दोषी महसूस करवाना चाहते हो और बार बार चाहते हो कि वो पश्चाताप करते चले जाए।
Your message is about threatening people about the coming judgment. आपका संदेश तो केवल आने वाले न्याय के बारे में लोगों को डराने के लिए है। How do you counter this? आप इसका सामना कैसे करेंगे? What about works? There's a big discussion going on about works. कामों के बारे में क्या? देखिए, कामों के बारे में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। Now they say you don't have to do any works because Jesus finished all the work on the cross. वो कहते हैं कि अभी हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, यीशु ने क्रूस पर सारा काम कर दिया है। Jesus finished all the works. यीशु ने सारा काम पूरा खत्म कर दिया है। So you rest. इसलिए बस आप अभी विश्राम करो। Just rest. बस विश्राम करो। Declare promises, rest. बस प्रतिज्ञाओं की घोषणा करो और विश्राम करते चले जाओ। Jesus finished everything. यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। I agree with that partly. मैं कुछ भाग तक इसमें सहमत हूं। Why? क्यों? In Galatians 2:15 and 16, क्योंकि गलातियों अध्याय 2:15 और 16 ये कहता है, the Bible says, "No one is justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ." तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। Very true. पूरी तरह सच है। We cannot be saved, we cannot be justified by any amount of works in the flesh. शरीर में किए गए कितने भी कामों के द्वारा हम न उद्धार पा सकते हैं और ना ही धर्मी ठहराए जा सकते हैं। रक्षितगुள்ள उद्धार नहीं पा सकते हैं। நீதிமானாக முடியாது. You cannot be justified. You cannot be justified. धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। It is very true. ये पूरी तरह सच है। But there is another side to this coin. लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। Ephesians 2:8-10. इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से 10 तक। For by grace you are saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कामों के कारण कि ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये क्या कहता है? எதற்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கோம்? நற்கிரியை செய்கிறதற்கு. So there are two ways you have to differentiate this. हमें दो तरह से इन बातों को परखना होगा। In order to be justified, none of our works will qualify. धर्मी ठहराए जाने के लिए हमारे कोई भी काम योग्य नहीं है। But God's grace came upon us and justified us. So from now on we can do good works. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में आया और उसने हमें धर्मी ठहराया और इसीलिए अब से आगे हम लोग भले काम कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Created in Christ Jesus for good works. मैं तो मसीह यीशु में भले कामों के लिए बनाया गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If you come to the book of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब में आते हैं, it starts about 7 churches. ये तो 7 कलीसियाओं के साथ शुरू होता है। Messages given to 7 churches. 7 कलीसियाओं को संदेश दिया गया है। Very interesting. बहुत ही दिलचस्प है। If you look at all the 7 churches, अगर आप 7 कलीसियाओं को देखें, Jesus made a specific mention recognizing their works. प्रभु यीशु ने वहां पर उनके कामों को परख कर उनके लिए खास बात कही है। Now church is a church that is redeemed by the blood of Jesus. They are already saved. चर्च तो ऐसी कलीसिया है जो यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाई गई है, वो तो उद्धार पा चुके हैं। They are already saved, justified. वो तो उद्धार पा चुके हैं, धर्मी ठहराए जा चुके हैं। But Jesus was watchful of their works. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उनके कामों को निहार रहे हैं, उनके कामों को ध्यान से देख रहे हैं। Note down these verses. इन वचनों को लिख लीजिए। Regarding the church of Ephesus, इफिसुस की कलीसिया के बारे में Revelation 2:2, प्रकाशित वाक्य 2:2 ये कहता है, I know your works. मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। Regarding Smyrna, स्मरना की कलीसिया के बारे में Revelation 2:9, प्रकाशित वाक्य 2:9 में, I know your works. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। Regarding the church of Pergamos, परगमुन की कलीसिया के लिए Revelation 2:13, प्रकाशित वाक्य 2:13 में, I know your works. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। Thyatira church, Revelation 2:19, थुआतीरा की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2:19 में, I know your works. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। Church of Sardis, Revelation chapter 3 and verse 1, सार्दिस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1,
I know your works. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। The church of Philadelphia, Revelation 3:8. फिलाडेल्फिया की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 3:8 में, I see your works. मैं तेरे कामों को देखता हूँ। The church of Laodicea, Revelation 3:15. लौदीकिया की कलीसिया प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 15 में, I know your works. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। God is watchful of our works. परमेश्वर हमारे सारे कामों को देख रहे हैं। Don't make anyone make you believe that works is not necessary after you became a child of God. कोई आपको ये विश्वास करने न लगाए कि परमेश्वर की संतान हो जाने के बाद में काम करने की कोई जरूरत नहीं होती है। Because the church got the direct message from Jesus and said, I know your works. क्योंकि चर्च ने यहाँ पर यीशु की ओर से सीधा संदेश पाया कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। I will even go further. चलिए यहाँ पर और भी आगे बढ़ते हैं। Revelation 3:2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 2, the message to the church of Sardis, सारदीस की कलीसिया के लिए संदेश, I have not found thy works perfect before God. मैंने तेरे कामों को परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं पाया है। यहाँ पर इस तरह से वो इस कलीसिया को बताता है कि मैंने तेरे कामों को परमेश्वर के सामने सही नहीं पाया है। He is encouraging them to say, I didn't see your works perfect. वो उन्हें प्रोत्साहित करता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे कामों को सिद्ध नहीं पाया है। If you come to Revelation 2:5, अगर आप प्रकाशित वाक्य 2:5 में देखते हैं, for a church that lost its first love, चर्च जो अपना पहला प्रेम खो बैठा है, what did Jesus say? यीशु ने उससे क्या कहा? Remember therefore from where you are fallen and repent and do your first works. इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले से काम कर, ये उससे कहता है। He goes even deeper. He says in Revelation 2:23, वो और भी गहराई में जाता है। प्रकाशित वाक्य 2:23 में इस तरह से कहता है, the last part says, इसका आखिरी भाग कहता है, I will give unto every one of you according to your works. और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। விசுவாசத்தின்படி இல்லைங்க, எப்படி? அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்க பலன் என்னோடு வருகிறது. How about rebuking in the church? चर्च में डांटने के बारे में क्या? Is it applicable to the church? क्या ये चर्च में उपयोगी है? Revelation 3:19, again a message to the church. प्रकाशित वाक्य 3:19, ये भी चर्च के लिए ही संदेश है। As many as I love, I rebuke and chasten. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। What about repentance? पश्चाताप के बारे में क्या? This is a big area of contention. ये तो निश्चय ही मतभेद का बड़ा क्षेत्र होता है। When we quote the verse from Epistle of John, if anyone says that I am not a sinner, he is a liar and the truth is not in him. और हम तो यूहन्ना की पत्री से इस तरह से वचन बताते हैं कि अगर कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं, तो वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। So it says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of all our unrighteousness. और ये कहता है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वह हमारे सारे अधर्मों से हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So when we say that verse, they say, oh, this is not written for believers, it is written for unbelievers. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कहते हैं ये विश्वासियों के लिए नहीं है, ये तो अविश्वासियों के लिए लिखा गया है। You are only forgiven once. एक बार आपको क्षमा कर दिया गया है And forever you are forgiven. और इसलिए आपको हमेशा के लिए क्षमा कर दिया गया है। Don't go and ask God, forgive me, forgive me, forgive me, I want to repent. परमेश्वर के पास जाकर ये मत कहना कि मुझे माफ कीजिए, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, ऐसा मत कहिए। But what does the Bible say? लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? If you come to Revelation 2:5, अगर आप प्रकाशित वाक्य 2:5 को देखते हैं तो आप पाएंगे, remember therefore from where you are fallen and repent. इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, इस तरह से कहता है। Revelation 2:16 says it again. प्रकाशित वाक्य 2:16 इसे फिर से कहता है। Revelation 2:21 to 22 says it again. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 21 और 22 इसे फिर से कहता है। Revelation 3:3 again says it. प्रकाशित वाक्य 3:3 इसे फिर से कहता है, Repent. पश्चाताप कर। The message of Jesus was repent, for the kingdom of God is at hand. यीशु मसीह का संदेश तो बस यही था कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Hallelujah. हालेलुया। In the last days, अंतिम दिनों में I tell you, let's hold on to the truth that was delivered to us. आइए हम उस सच्चाई को थामे रहें जो हमें दी गई है। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों?
These are the days when people will run here and there and listen to what they choose, what they like, what they enjoy, what they want. क्योंकि ये ऐसे दिन है जहां पर लोग खुद भागेंगे, दौड़ेंगे और उन्हें जो पसंद है, जो वो सुनना चाहते हैं, वो जिसका आनंद उठाते हैं, केवल वही वो सुनना चाहेंगे। These are the days when blatantly pastors will say, no need to pray, no need to confess, no need to fast, nothing, just rest. ये तो ऐसे दिन हैं जहां पर पास्टर बिल्कुल बेधड़क होकर कहेंगे कि अंगीकार करने की ज़रूरत नहीं, पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं, उपवास करने की ज़रूरत नहीं, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, बस विश्राम करना है। That is not what the Bible says. बाइबल ये नहीं कहती है। The last days people will rise up to hear all these nice words, and there will be people who also speak sugar-coated sermons. अंतिम दिनों में लोग उठ खड़े होंगे कि ऐसे संदेश को सुनते जाएं और मानो शक्कर लगाए हुए संदेश प्रचार किए जाएंगे। These are the last days. ये तो अंतिम दिन हैं। The third sign तीसरा चिन्ह, that we are the last days that will be evident inside the church. तीसरा चिन्ह जो कि अंतिम दिनों के बारे में है वो चर्च में होगा। 2 Timothy chapter 3 verse 8 to 9. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 8 और 9। It says, now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these who resist the truth, men of corrupt minds, reprobate concerning the faith, but they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, and theirs also was. जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। The first sign in the church is contradictory lifestyle. चर्च में पहला चिन्ह ये है कि यहाँ पर विरोधाभास की जीवन शैली है। The second one is the church will choose to listen to what it wants. और दूसरा है कि चर्च ये चुनाव करेगा कि वो क्या सुनना चाहता है। The third तीसरा sign in the church will be the church will have challengers of God's servants. तीसरा चिन्ह ये है कि चर्च में परमेश्वर के दास को चुनौती देने वाले लोग होंगे। Here Apostle Paul writes to Timothy about two people, Jannes and Jambres. यहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को दो लोगों के बारे में लिखता है, और वो है यन्नेस और यम्ब्रेस। But these two people are not mentioned anywhere in the Old Testament in regard to Moses. लेकिन मूसा के संबंध में इन दोनों लोगों के बारे में पुराने नियम में कहीं पर नहीं लिखा है। But historically, research they say that these two people, according to tradition, they say they were actually sorcerers in the palace of Pharaoh. लेकिन इतिहासकार इस तरह से बताते हैं कि ये जो दो लोग थे, ये तो फिरौन के महल में रहने वाले दो जादूगर थे। They opposed Moses by counterfeiting his miracles and resisting Moses. उन्होंने मूसा का विरोध किया, उसके चमत्कारों की नकल करने के द्वारा उसका विरोध किया। And when the miracles were all over, when the Israelites were delivered from Egypt, they went along with the Israelites, claiming that they are now converted Jews and joined the company towards Canaan. और जब इस्राएली लोग मिस्र में से निकल गए, तो ये लोग वहाँ पर इस्राएलियों के साथ में उनके समूह में जुड़ गए और कहने लगे कि अब तो वो बदल गए ऐसे यहूदी हैं और वो उनके साथ में कनान देश की ओर आगे बढ़ेंगे। Tradition says, परंपरा कहती है, in the later days when Moses had gone to Mount Sinai to receive the tablets from God, जब बाद के दिनों में मूसा सिनै पर्वत पर गया कि परमेश्वर की ओर से वो वहां पर उन पत्थर की पटियों को प्राप्त कर ले, 40 days, 40 nights. 40 दिन और 40 रात वो वहां पर रहा। They say these two people subverted the entire Israelite crowd and convinced them to make a golden calf so they can worship the God of the Egyptians again. कहा जाता है कि इन्हीं लोगों ने पूरे इस्राएली लोगों को भरमाया और उन्हें उकसाया कि वो सोने के बछड़े को बनाए और उसकी उपासना करे और मिस्र की उपासना के तरीके को वो फिर से भीतर लेकर आए। They resisted Moses. उन्होंने मूसा का विरोध किया। And this is going to happen again in the last days. और अंतिम दिनों में ये फिर से होने वाला है।
There will be people who act like politics in church. ऐसे लोग जो कि चर्च में राजनीति के रूप में काम करते चले जाएंगे। They will split churches. वो चर्च को तोड़ देंगे। They will make fun of the older generation of pastors. वो तो पास्टर की पिछली पीढ़ी का मजाक उड़ाते चले जाएंगे, बुजुर्ग पास्टर का मजाक उड़ाते जाएंगे। They'd make fun of them. वो उनका मजाक उड़ाएंगे। There will be a crowd that will rise up and say, we don't need any more pastors. ऐसी भीड़ खड़ी होगी जो कहेगी हमें और पास्टर की जरूरत नहीं है, We don't need churches. हमें चर्च की जरूरत नहीं है। We'll have our church at our own house. हम अपने घर में अपना चर्च कर लेंगे, वहां पर सभा रखेंगे। We will run our own church. हम अपने चर्च को खुद चलाएंगे। We will preach our own sermon. हम अपना संदेश प्रचार करेंगे। It will go further. और ये तो इससे भी और आगे बढ़ेगा। In Jude verse 18, यहूदा वचन 18 में हम इस तरह से देखते हैं, in the last time, he said, mockers will come who will walk after their own ungodly lusts. पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। इस तरह से वो तो बस केवल ठट्टा करने वाले लोग होंगे। In verse 10 it says, वचन 10 में ये कहता है, these people will slander what they don't even understand, and the very things they understand by instinct as irrational animals, they will destroy them. पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। And verse 11, the last part says, वचन 11 का आखिरी भाग कहता है, they have been destroyed by the rebellion of Korah. और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। These are the last days. ये अंतिम दिन हैं। They'll challenge true servants of God. मैं परमेश्वर के सच्चे दासों को चुनौती They देता will हूं mock true servants of God. कि परमेश्वर के सच्चे दास के रूप में चलिए। They will accuse true servants of God with accusations that they don't deserve. वो परमेश्वर के सच्चे दासों पर ऐसे ऐसे दोष लगाएंगे जिसके वो योग्य नहीं हैं। The church is going through the last days. चर्च अंतिम दिनों में से होकर जा रहा है। We as a church, we as believers, हम चर्च के रूप में, विश्वासी के रूप में, we need to be warned of these things. हमें इन बातों से सचेत हो जाना है। The coming of the Lord is drawing very near. प्रभु का आगमन तो बहुत ही निकट है। We need to learn to rip off all hypocritical lifestyles and be honest and sincere before God. हमें सारे ढोंगी जीवन शैली को दूर कर देना है और परमेश्वर के सामने हमें सच्चा होना है, हमें प्रभु के सामने पश्चाताप करना है। Hallelujah. हालेलुया। We must start to walk in the light by coming out of the dark closets. अंधकार के कमरे से बाहर निकलकर ज्योति में चलना शुरू कीजिए। We have to be overcomers of the evil one. हमें उस दुष्ट पर जयवंत होना है। Hallelujah. हालेलुया। We need to choose willingly to listen to God's word no matter how it comes to us. चाहे परमेश्वर का वचन कैसे भी हमारे पास आए, हमें इच्छा रखनी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते चले जाएं। We don't counsel God but we listen to his counsel for us. हम परमेश्वर को सलाह नहीं देते हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की सलाह को हम सुनते हैं। That we will listen to the men of God God has given to teach us and guide us and counsel us. परमेश्वर के दासों की हम सुनेंगे जिन्हें परमेश्वर ने हमारा मार्गदर्शन करने और हमें सलाह देने के लिए रखा है। When I spoke about the 3 dangerous signs in the last days in the church, जब मैं चर्च के अंतिम दिनों के 3 खतरनाक चिन्हों के बारे में बता रहा हूं, there are 3 things I should not miss mentioning. तो 3 बातों को मुझे बताते हुए चूकना नहीं है। What are the 3 things that will happen as a blessing in the last days for the church? अंतिम दिनों में चर्च के लिए आशीष के रूप में कौन सी 3 बातें होगी? Number 1, नंबर 1, in the last days, अंतिम दिनों में there will be a mighty outpouring of the Holy Spirit on the church. चर्च के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थी रीति से उंडेले जाना होगा। In Acts 2:17, प्रेतों के काम अध्याय 2 वचन 17, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा। That will include your sons, your daughters, your youth, your elders, your pastors, everyone. They will be anointed by the Holy Spirit. इसमें आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके जवान, आपके पास्टर, सभी लोग हैं जिन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला जाएगा। In the last days, God is going to raise up a generation who will be willingly following God and the leading of His Holy Spirit by being anointed by Him. अंतिम दिनों में ऐसी पीढ़ी उठकर खड़ी होगी जो बड़ी इच्छा से परमेश्वर के पीछे चलेगी, परमेश्वर का अभिषेक पाकर वो आगे बढ़ती जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। They will completely be led by the Holy Spirit. वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगी। Everything they do,
They'll be taught by the Holy Spirit. जो कुछ भी वो करेंगे वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाएंगे। We need to say, Lord, help me as a believer in the last days to be led by your Holy Spirit. हमें कहना होगा, प्रभु जी मेरी मदद कीजिए कि अंतिम समय के विश्वासी के नाते मैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जाऊं। In the last days, secondly, something will happen. अंतिम दिनों में दूसरी भी बात होगी। The Lord will use His church to evangelize the world. परमेश्वर अपनी कलीसिया का उपयोग करेंगे कि पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार हो। Matthew 24:14. मत्ती अध्याय 24 वचन 14। This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। Before the end will come, अंत के आने के पहले the gospel will be preached. सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। To whom is this job of preaching the gospel given? और सुसमाचार प्रचार का ये जो काम है ये किसे दिया गया है? It was not given to angels. ये स्वर्गदूतों को नहीं दिया, It was given to God's disciples. ये तो परमेश्वर के चेलों को दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। We are the disciples of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। How many of you believe that? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? So when the Lord says the gospel will be preached in the end of the world, He has entrusted us the job of taking the gospel to the end of the world. जबकि परमेश्वर कहते हैं कि अंतिम दिनों में पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तो इस काम के लिए परमेश्वर ने हम पर भरोसा रखा है। As we are in the last days, जैसे हम अंतिम दिनों में हैं, wherever we are, हम चाहे जहां भी हो, be an evangelist and preach the good news of the gospel of Jesus Christ. आप प्रचारक हो जाइए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप प्रचार करते चले जाइए। In your school, in your college, among your friends, co-workers, relatives, neighbors, wherever you are, be an evangelist. आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके दोस्तों के बीच में, आप चाहे जहां भी हो, पड़ोसियों को, सबको आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताते चले जाइए। The days are few. और ये दिन तो बहुत ही कम हैं। As many as I can, जितने लोगों को प्रचार कर सकते कीजिए। I will go and preach the good news of Jesus. मैं जाकर उन लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार बताऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। In the last days, as you come to church, अंतिम दिनों में जैसे आप चर्च में आते हैं, don't just come by yourself. बस ऐसे ही अकेले मत आइए। Try to bring new souls into the church. चर्च में आप नई आत्माओं को लेकर आने की कोशिश कीजिए। Speak about them throughout the week. पूरे हफ्ते भर उनसे आप बातचीत कीजिए, उन्हें बताते चले जाइए। Invite them into your homes for prayer. प्रार्थना के लिए अपने घर में आप उन्हें न्योता दीजिए And tell them the good news of Jesus Christ. और उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार बताइए। Hallelujah. हालेलुया। These are the last days. ये अंतिम दिन हैं। Whenever there is an opportunity for ministry, जब भी सेवकाई के लिए कोई भी अवसर मिलता है, कोई भी मौका मिलता है, run there and be part of that. आप वहां पर जाइए और उसका भाग हो जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you can be working with small children, taking Sunday school once a week. कई बार हम हफ्ते में एक बार छोटे बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, संडे स्कूल ले सकते हैं। In your area, collecting 10 children, speaking about Jesus to them. अपने क्षेत्र में 10 बच्चों को आप जमा कीजिए और उन्हें आप यीशु के बारे में बताते चले जाइए। Do the work of an evangelist. एक प्रचारक का काम कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। The last thing, ये आखिरी बात है। the third one, तीसरी बात, Matthew 24:9-10. मत्ती अध्याय 24 वचन 9 से 10 ये कहता है, This will happen in the church in the last days. ये तो अंतिम दिनों में चर्च में होगा। And they will deliver you up to be afflicted and shall kill you, and you will be hated of all nations for my name's sake. And then many will be offended and will betray one another and hate one another. The love of many will grow cold, but he who abides till the end, he will be saved. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। In the last days, अंतिम दिनों में the church will go through an unprecedented persecution. कलीसिया तो अनिश्चित सताव में से होकर जाएगी। Every nation will persecute Christians. हर एक देश विश्वासी लोगों को सताते चले जाएगा।
You can see that in the papers today. Everywhere there is a persecution. आज आप अखबारों में से देख सकते हैं कि हर जगह केवल सताव ही सताव है। In the last days, अंतिम दिनों में you will see that our nation will formulate new laws and rules so that the work of the gospel will be restricted. आप देखेंगे कि अंतिम दिनों में हमारा देश ऐसे नए नए कानून बनाएगा जिसके कारण विश्वासियों को बहुत ज्यादा सताया जाएगा। There will be so many problems you will face in your jobs. आपके नौकरी में, आपके दफ्तर में आपको बड़ी समस्याएं होगी। Many people will betray you. बहुत से लोग आपको धोखा देंगे। Many people will cause tremendous problem for you in your work spot. बहुत से लोग आपके दफ्तर में आपके लिए बहुत सी समस्याओं को उठाकर खड़ा कर देंगे। In the future, भविष्य में as a Christian, you will suffer. मसीह विश्वासी होने के नाते आप दुख उठाएंगे। There will be a tremendous suffering and persecution on the saints of God. परमेश्वर के संतों को बहुत ज्यादा सताया जाएगा। The freedom that the church has will be restricted. जो कलीसिया के पास में आजादी है उसे रोक दिया जाएगा। There will be difficult, terrible times. और ये तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही भयानक ऐसा समय होगा। But before those days arrive, लेकिन ऐसे दिन आने के पहले, मुश्किलें आने के पहले, I will proclaim the good news of Jesus. मैं यीशु मसीह का सुसमाचार घोषित करते जाऊंगा। And during those days, और उन दिनों के समय में I will stand as a witness for Jesus. मैं यीशु मसीह के लिए गवाह हो जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even in that perilous times, यहाँ तक कि उस क्लेश के भयानक समय में I will never deny the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What I'm saying will happen in this country very soon. मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये तो इस देश में बहुत ही जल्दी होने वाला है। It will no longer be a comfortable journey to be a Christian. अब विश्वासी होना आपके लिए आरामदेह यात्रा नहीं रहेगी। It will not be a bed of roses. ये तो फूलों का, गुलाब का बिस्तर नहीं होगा। The verse that says, if anyone wants to follow me, let him take up his cross and follow me, will become a reality in the last days. ये वचन जो ये कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, ये तो अंतिम दिनों में वास्तविकता होने वाला है। In the last days, अंतिम दिनों में for the sake of Christ, you will be hated of all people. मसीह यीशु के कारण सभी लोगों में से आपसे ज्यादा नफरत की जाएगी। But if you endure till the end, लेकिन अगर आप अंत तक धीरज रखेंगे counting Christ as our supreme king, और मसीह यीशु को अपना महान राजा मानेंगे, and if you count all other things as loss for Christ, और बाकी सारी चीजों को मसीह के लिए आप नुकसान समझेंगे, I tell you, तो मैं आपसे कहूं when the days are coming to an end, तो वो दिन तो बिल्कुल खत्म होंगे the crown of righteousness is waiting for you. और धार्मिकता का मुकुट आपका इंतजार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I pray मेरी प्रार्थना है that as an individual, कि एक व्यक्ति के रूप में, as a church, चर्च के रूप में, as the Lord reveals these signs, जैसे परमेश्वर इन चिन्हों को प्रकट कर रहे हैं, let us wake up, be alert, and prepare for the coming of our Lord Jesus. आइए हम जाग जाएं और प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो। प्यारे दर्शकों, हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आने वाले दिनों में यदि आप हमारी आराधना सभाओं को देखना चाहें तो आप ACA आवड़ी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम के द्वारा जो आशीषें आपने प्राप्त की हैं उन्हें हमारे साथ शेयर करें। अपने अनुभवों को स्पष्ट पता एवं फ़ोन नंबर सहित acaavadi@gmail.com नमक ईमेल एड्रेस में भेजें। अपनी प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9380217774 तथा 9382217774। परमेश्वर आपको आशीषित करे।